Shortly, we'll start getting the live pictures from the Delhi Assembly now, because right after the stormy start of the Delhi session, today is the second day, and the second day is set now for a fresh showdown between the new BJP government and the opposition Aam Aadmi Party, as the BJP government is all set to table the pending CAG reports in the Assembly today. Today being the second day of the newly constituted Delhi Assembly session, which is set to commence any moment now, with the address coming in from the Delhi Governor V.K. Saxena, following which Chief Minister Rekha Gupta will be now tabling the pending CAG reports. The live pictures that are now coming in as Lieutenant Governor has reached. He's now been greeted and felicitated by the Chief Minister, by the Minister Parvesh Verma, and also now by the Speaker Vijayendra Gupta as well. Let's get a word from Mohit. Mohit, the Speaker now, the Lieutenant Governor now making his way to the Assembly, as shortly his address will begin, and thereafter now fireworks are expected. Well, yes, but I'll show you the scenes around. The Lieutenant Governor, along with Delhi Chief Minister and the entire cabinet, has gone inside the Assembly, and shortly from now, the address from the LG will begin. Now, it will be very interesting to see that what exactly the LG has to say, given the fact that we know for a fact that how LG has been very critical of the then Aam Aadmi Party government. He has been making several questions, and there was a constant tussle between the LG and the Aam Aadmi Party government. Now we see that how the times have changed. The BJP has formed the government here in Delhi, and now today is the first session, first address of the LG in this particular assembly hall where the new regime has taken over. Now today is an important day. Why? Because the CAG reports will be tabled, but the sources say that around 2 to 3 CAG reports will be tabled, and the prominent one being the audit of the liquor policy. We have accessed the details of the liquor policy. After the address of the LG, we will see the reports will be tabled. Now we have seen that how liquor policy has been a flashpoint of the political fight between the BJP and the Aam Aadmi Party, where the BJP had been saying this, that Arvind Kejriwal, instead of making hospitals and schools, he was busy in giving benefits to the private vendors, taking money, and that money which was being earned from the liquor policy was used in Goa elections. So that had been a big charge. We know for a fact that how many of the top leaders of the Aam Aadmi Party went to jail because of the allegations that have come in the liquor policy scam. Now the audit report we have accepted, it speaks about that how exactly the private vendors were being benefited. Now it also talks about that what the expert committee has said and what the group of ministers meeting when it happened had implemented. So there are serious lapses that have come out in this particular report. That report will be tabled in the parliament, in the assembly around 12 p.m. There will be an address by the LG. Now we have to wait and watch what exactly, Amita, the LG will have to say, given the fact that when Atishi went to tender her resignation after BJP's win, LG, according to the sources, said that it is because of Yamuna the Aam Aadmi Party has lost. So we have to wait. The Sarkar has changed, and the BJP government now being in power, saying that the pending CAG report, and the more contentious one being on the liquor policy, that is going to be tabled today right after the LG's address. The felicitation ceremony that happened a short while back, and the LG's address would be taking place in the Delhi Assembly. Meanwhile, how the BJP leaders have been reacting as to how the Aam Aadmi Party says that this is only an attempt to mislead the people. Listen in. CAG की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है, और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद CAG की रिपोर्ट पटल पर आएगी, तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनको डर लग रहा है कि CAG की रिपोर्ट आएगी। CAG की रिपोर्ट के डर से ध्यान भटकाने के लिए नाटक तमाशे, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है। लेकिन उनको कम से कम इस चुनाव में ये समझ आ जाना चाहिए कि नौटंकी की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब भी अगर उनके जो बचे खुचे विधायक हैं वो जनता का काम करें, जनता के मुद्दे उठाएं, जन सेवा करें, इसी में उनकी राजनीतिक भलाई भी है। जो अगर पुराने ही अपने मॉडल को, नौटंकी को, तमाशे को कंटिन्यू करेंगे तो जितने और बचे हैं उनकी भी राजनीति धीरे धीरे और कमज़ोर होती चली जाएगी। मेरी ये सलाह है उनको कि विधानसभा की गरिमा पिछले 10 सालों में बहुत ख़राब की गई। इस विधानसभा के अंदर देश का और धर्म का, समाज का और दिल्ली की जनता का बहुत अपमान किया गया। अब इस विधानसभा को गरिमापूर्ण तरीके से चलने दें।
Well, Nalan Kohli of the BJP is connected with us. Good morning, sir. We are now looking at the LG's address that would be taking place in the assembly. But right after that, what the BJP has been calling that complete exposure of the Aam Aadmi Party government previously would be done, and especially when it comes to the contentious issue of the Liquorgate case. What do you think exactly would be on the exposure that the BJP is now talking about reopening when it comes to such files are concerned? We will have to wait to see what are the proceedings in the House. But the larger question that the Aam Aadmi Party and Mr. Kejriwal particularly cannot escape. They came on the promise of India against corruption. They promised a corruption-free government. They promised a government where there would be transparency. These are the people who started their political journey as RTI, or Right to Information activists. Now look at the irony that during their tenure of about 10 years, not one thing that can show how the money of the public is spent, they tabled on the House of the Assembly. They ran away literally from tabling the CAG reports. This raises serious questions not just on their conduct, but their intention. What were they petrified would come out in these reports? Why should these reports not be placed before the House and, in effect, the people of the city whose money is being used for running the administration? Right. The issues that have been there. Mr. Kohli, I apologize to interrupt you right now because we are getting pictures of the LG's address that has now begun in the assembly. So we would want to get the live address of the Lieutenant Governor who is now addressing the assembly session. मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह जिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉलेट एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रता पूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए।
मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए। All right, quite a dramatic start to the day as far as the Delhi Assembly session, the second day with the Lieutenant Governor's address that has now been taking place, and time and again it has been interrupted by the opposition. Now the Aam Aadmi Party leaders and MLAs. Now Mohit getting connected with us. Mohit, that you'll be पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, हमारे ऑफिस का। किनके साथ आए? हमारे ऑफिस का। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। चलिए बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए चलो। चलिए बाहर करिए, मार्शल्स फॉलो द ऑर्डर, इमीडिएट। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन ना लेना पड़ेगा। देख लो, आप एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को
आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए, ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को कैन नॉट बी ए मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग निम्न मध्यम मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें, आउट करो। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुग्गी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है, जिसके बारे में मैं इस सदन को संक्षेप रूप में बता रहा हूं।
मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि विधायक का संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व यह है कि यहां सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो।